جرم و سزا اور تفتیش کی ناقابل فراموش سچی کہانیاں۔ پوسٹ مارٹم قسط نمبر 7۔ مطلوب حسین کی زبانی مجھے اس یادگار چانٹے کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا جو شادی کے روز نرگس نے قربان کے منہ پر مارا تھا۔ نرگس سے قربان کی دشمنی کی بنیاد اسی دن پڑ گئی تھی۔ میں نے نرگس سے پوچھا شادی کن حالات میں ہوئی تھی؟ وہ بڑے بےہودہ حالات تھے۔ وہ دور خلا میں گھورتے ہوئے بولی مجھے زبردستی اغوا کر کے چودھری کے ڈیرے پہنچایا جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد چودھری فرمان ایک نکاح خواں اور چند حواریوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس کے کچھ دیر بعد میرے بوڑھے ماں باپ کو بھی اسی ڈیرے پر لایا گیا۔ چودھری کے بندوں نے میری ماں اور باپ کو بندوقوں کے نشانوں پر رکھ لیا اور مجھ سے کہا گیا کہ میں چودھری فرمان کے نکاح میں آ جاؤں۔ انکار کی صورت میں وہ میرے والدین کو میری نگاہ کے سامنے بھون کر رکھ دیں گے۔ اس کے بعد میرا جو حشر ہوگا اسے دنیا دیکھے گی۔ پھر چودھری مجھ سے شادی نہیں کرے گا بلکہ داشتہ بنا کر حویلی میں ڈال لے گا، اور اگر میں نے زیادہ 3-5 کی تو وہ مجھے زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے ذرا رکی، پھر مجھ سے مستفسر ہوئی آپ ہی بتائیں تھاندار صاحب، میں اس شادی سے انکار کس طرح کرتی؟ میں نے اپنے ماں باپ کو گولیوں سے چھلنی ہونے سے بچایا اور خود کو چودھری کی رکھیل بننے نہیں دیا۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک خیال یہ بھی آیا تھا کہ اپنی جان دے دوں مگر فرمان جیسے منحوس گدھ سے شادی نہ کروں، مگر ایسا سوچتے میری ماں اور باپ کے چہرے پر میرے تصور میں چمکنے لگے۔ ان کی بے جان لاشیں گولیوں سے چھلنی تھے جو میرے انکار کا نتیجہ تھا۔ میرا تصور کانپ اٹھا اور میں انکار نہ کر سکی۔ تھاندار صاحب، میں مجبور ہو گئی تھی، بہت مجبور۔ وہ خلا میں دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے تھے۔ نرگس اس وقت مجھے دکھ کا مرقع نظر آئی۔ بیچاری کے ساتھ واقعی بہت بڑا ظلم ہوا تھا اور نرگس اس سلسلے کی پہلی یا آخری کڑی نہیں تھی۔ جب تک اس دھرتی پر ظالم اور جابر لوگوں کی حکمرانی رہے گی، اس قسم کی المناک داستانیں دہرائی جاتی رہیں گی، چہرے اور ہاتھ بدلتے رہیں گے مگر کہانی وہی رہے گی۔ میں نے نرگس کا غبار نکلنے دیا، یہ اس کی ذہنی اور روحانی صحت کے لیے بہت ضروری تھا۔ جسمانی علاج تو ڈاکٹر کر رہا تھا، جب دل کی کلفت نے اس کی آنکھوں کو دھویا تو میں نے نرگس سے ایک انتہائی نازک سوال کیا۔ اس کا تعلق رشیدہ بیگم کے اس انکشاف سے تھا بعد ازاں جس کی تصدیق رخسانہ بیگم نے بھی کی تھی۔ نرگس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں ان دونوں کی تائید کر دی۔ اس طرح چودھری کی خامی کو سند حاصل ہو گئی۔ میں نے کہا رشیدہ کا خیال ہے چودھری نے اپنی اسی خامی کے غم میں خودکشی کی ہے۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ معذوری سے بولی۔ اور رخسانہ کا کہنا ہے چودھری اتنا بزدل نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے اپنی جان لے لیتا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تم چودھری فرمان کو پیش آنے والے حالات کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ وہ گمبھیر آواز میں بولی میں نہیں جانتی چودھری کو قتل کیا گیا ہے یا اس نے خودکشی کی ہے، بہرحال اس کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ مجھے بے قصور سا معاملے میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ اس کا لہجہ کہیں سے بھی جھوٹ کی چغلی نہیں کھا رہا تھا۔ میں نے سوالات کا زاویہ تبدیل کیا اور پوچھا آج تمہاری خدمت گار سلمہ حویلی نہیں آئی؟ کیا کل اس نے نہ آنے کے بارے میں تمہیں کچھ بتایا تھا؟ نہیں، اس نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، وہ قطعیت سے بولی۔ میں نے چودھری فرمان کے خوابگاہ میں کھلنے والے دروازوں کے بارے میں تھوڑی بہت بات کی، پھر کہا نرگس تمہارے کمرے کا دروازہ گزشتہ رات کھلا پایا گیا تھا، اس لیے قربان تمہیں نشانہ بنا رہا ہے۔ اس کو ایک موقع مل گیا ہے، اس سلسلے میں تم کیا کہو گی؟ میں یہی کہوں گی اگر وہ دروازہ کھلا نہ بھی ہوتا تو یہ لعین دشمنی سے باز نہ آتا، وہ بیزاری سے بولی۔ اور وہ دروازہ کھلا اس لیے تھا کہ ان دنوں چودھری فرمان صرف مجھے ہی اپنی خلوت میں بلاتا تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا گزشتہ رات تم کب تک چودھری کے کمرے میں رہی؟ لگ بھگ 10 بجے تک، وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ کیا یہ معمول کے مطابق تھا؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے خلاف معمول تھا۔ اس مرتبہ وہ سر کو اسباتی جنبش دے کر رہ گئی۔ میں نے پوچھا عام طور پر تم کتنے بجے تک اس کے کمرے میں رہتی تھی؟ پوری رات یا پھر رات کے آخری پہر تک، اس پاٹ لہجے میں بولی۔ گزشتہ رات قبل از وقت واپسی کا سبب کیا تھا؟ چودھری فرمان احمد نگر سے باہر کہیں گیا ہوا تھا اور رات کو دیر سے حویلی پہنچا تھا۔ اس کی واپسی رات 9 بجے کے قریب ہوئی تھی۔ اس نے رات کا کھانا بھی بھرپور انداز میں نہیں کھایا تھا اور دودھ کا ایک گلاس پینے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ اسے نیند آ رہی ہے، وہ بہت زیادہ تھکن محسوس کر رہا ہے، لہذا سونا چاہتا ہے۔ اس نے خمارآلود آواز میں مجھے تاکید کی کہ میں ابھی اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤں۔ یہ بات بھی خلاف معمول نہیں تھی۔ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ ہاں تھی تو، وہ تائید کرتے ہوئے بولی، لیکن چودھری اپنی مرضی کا مالک تھا، وہ کسی کو کچھ بھی کہہ سکتا تھا، دوسروں کو بے چوچرا اس کے حکم کی تعمیل کرنا ہوتی تھی۔ تم چودھری کی ہدایت پر اپنے کمرے میں آ کر سو گئی تھی؟ مجھے کافی دیر تک نیند نہیں آئی، اس نے بتایا۔ میں اپنے بستر پر لیٹی کروٹیں بدلتی رہی۔ ایک مرتبہ اٹھ کر میں نے چودھری کے کمرے میں جھانکا۔ اس عمل میں نے یہ احتیاط رکھی کہ چودھری کو میری حرکت کا علم نہ ہو، ورنہ وہ مجھے ڈانٹ بھی سکتا تھا کہ میں نے اس کی ہدایت پر عمل نہیں کیا۔ میں نے نیموا دروازے میں سے چودھری کو کروٹ کے بل لیٹے دیکھا۔ اس کا منہ دوسری دیوار کی جانب تھا، اس لیے
मैं अंदाजा न लगा सकी कि वो सो चुका या जाग रहा है। वो थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर बात जारी रखते हुए बताने लगी। मैं वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। फिर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। दूसरी सुबह जब मैं सोकर उठी तो चौधरी के कमरे का मंजर ही बदला हुआ था। वो छत से लटका हुआ था। मैं वो मंजर देखकर वहशतज़दा हो गई। इसी वहशत और दहशत में मैं कमरे से बाहर निकल आई। मेरी नज़र मंजूर पर पड़ी तो मैंने इसे चौधरी की खुदकुशी के बारे में बताया। फिर थोड़ी ही देर बाद छोटा चौधरी वहाँ पहुँच गया। कुर्बान ने बड़े भाई को छत से लटका हुआ देखा तो मुझ पर बरस पड़ा। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आपसे ढका छुपा नहीं है। नरगिस इतना कहकर खामोश हो गई। इसकी सीधी आंखों ने तकिए को अच्छा खासा भिगो दिया था। मैं गहरी सोच में डूब गया। ये अंदाज़ा लगाने मुझे किसी दिक्कत से नहीं गुजरना पड़ा कि नरगिस इस मामले में सरासर बेकसूर थी। चौधरी कुर्बान ज़ाती रंजिश और दरीना परखाश की वजह से खामखा इसे घसीट रहा था। बल्कि वो ऐसा क्यों कर रहा था? इसका सवाल ये भी हो सकता था कि हक़ाइक़ की पर्दापोशी के लिए। अगर इस थ्योरी को मान लिया जाए तो फिर चौधरी कुर्बान की ज़ात चौधरी फरमान की मौत में मुलव्विस दिखाई देने लगती थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि मुझे बताया गया कि मुरादपुर से कुछ लोग नरगिस से मिलने आए हैं। नरगिस के अस्पताल में मौजूदगी कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। ऐन मुमकिन था इसके घर वालों में से कोई देखने आया हो। मैंने फ़ौरन वार्ड में बुला लिया। नरगिस का बयान एक तरह से मुकम्मल हो चुका था। इन लोगों की आमद से मुझे कोई फ़र्क न पड़ता। वो कुल 4 अफराद थे, 3 मर्द और 1 औरत। इनमें एक नरगिस का बाप शौकत हुसैन था, दूसरा इसका बहनोई और तीसरा नौजवान हबीब था। औरत कदीर की बीवी या नरगिस की बहन थी। हबीब के बारे में मुझे मालूम हो तो मैं चौंक उठा। इस केस में इसका नाम कई जगहों पर आ चुका था। मैं इसकी खबरगिरी के लिए कल मुरादपुर जाने वाला था। अच्छा हुआ वो खुद ही चलकर मुझ तक पहुंच गया था। मैंने बाकी 3 अफराद को तो नरगिस के पास रहने दिया और हबीब के कंधे पर हाथ रखते मोतदिल लहजे में कहा, जवान तुम ज़रा मेरे साथ आओ। कहाँ जी? इसने उलझन ज़दा लहजे में पूछा। मैंने कहा, हबीब मैं तुमसे चंद ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ और ये जगह इन बातों के लिए मुनासिब नहीं। मेरे अंदाज में ऐसी कतियत थी कि वो एक नज़र नरगिस पर डालने के बाद मेरे साथ हो लिया। मैं इसे जनरल वार्ड से बाहर अस्पताल के एक पुरसकून गोशे में ले आया। वहाँ एक तवील चौबी बेंच बिछी थी। मैंने इस बेंच पर बैठते हुए इसे बैठने की दावत दी। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद इसे मेरी बात मान ली और मुतफक्किर निगाह से मुझे देखने लगा। इसकी आंखों में एक बेनाम सी उलझन ने जाला बुन दिया था। मैंने खंगार कर गला साफ किया और ठोस लहजे में कहा, हबीब मैं थानेदार हूँ, ज़रा दूसरी किस्म का। सच बोलने वालों को सर आंखों पर बिठाता हूँ और झूठों को 100 जूते लगाता हूँ। तुमने पुलिस वालों का जूता तो देख रखा है ना, 9x4 का प्योर लेदर होता है। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? वो हकलाया। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, इसलिए बता रहा हूँ कि अब मैं तुमसे चंद सवाल पूछूंगा। अगर तुमने मुझे चक्कर देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें हवालात की हवा खिलाने अपने साथ ले जाऊंगा। मैं आपको चक्कर क्यों दूंगा? वो गहरी संजीदगी से बोला, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, फिर आपसे क्यों डरूं? आप पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? इसका अंदाज निडर और बेबाक था। मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने चौधरी फरमान अली की मौत के बारे में तो सुन लिया होगा। इस केस में तुम्हारा नाम लिया जा रहा है। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, सुबह नरगिस के वालदा और बहन बहनोई अहमदनगर गए थे। इनकी ज़ुबानी मुझे वहाँ के हालात से आगाही हुई। लेकिन आप अब ये नई बात बता रहे हैं कि चौधरी फरमान अली के मामले में मुझे मुलविस किया जा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? मैंने पहले से वजह की तफसील बताई। फिर कहा, चौधरी कुर्बान का कहना है तुमने नरगिस के साथ मिलकर बड़े चौधरी को मौत के घाट उतारा है और बाद में इसे खुदकुशी का रंग दे दिया। बात के इख्तिताम पर मैंने हबीब को तेज़ नज़र से घूरा। ये झूठ है, बकवास है। वो तकरीबन चिल्ला उठा, मेरा चौधरी फरमान अली से क्या ताल्लुक? चौधरी फरमान ना सही, नरगिस से तो है। मैंने इसे घिसने की खातिर कहा। वो शिद्दत से नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोला, चौधरी कुर्बान मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। क्या इसने मुझे चौधरी फरमान को कत्ल करते देखा है जो वो इतना बड़ा दावा कर रहा है? इसने नहीं देखा, लेकिन मैं इसकी शिकायत पर तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ। मैंने अपने लहजे में संगीनी भरते हुए कहा, ताकि अगर वो चोर हो तो अपने पाँव पर खड़ा न रह सके। जब तुम मेरी तफ्तीश के रगड़े में आओगे तो सब कुछ उगल दोगे। जनाब आप मेरी बात का यकीन करें। वो गहरी संजीदगी से बोला, चौधरी फरमान की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं। आप बिलावजह मुझे परेशान न करें, बल्कि मैं तो कहता हूँ नरगिस को भी खामखा तंग ना करें। वो बेचारी पहले ही बहुत तकलीफें उठा चुकी है। बड़ी हमदर्दी तुम्हें नरगिस से, मैंने चुपते हुए लहजे में कहा। होनी भी चाहिए थानेदार साहिब, वो मेरी मामूजाद है जो कभी तुम्हारी मंगेतर भी थी। ये भी एक हकीकत है। वो यक लख्त उदास हो गया। मैंने अपनी तसल्ली की कोशिश जारी रखते हुए कहा, चौधरी फरमान अली ने ज़बरदस्ती तुम्हारी मंगेतर को छीन लिया। तुम चौधरी के अपने दिल में बेहद गम और गुस्सा रखते थे। तुमने नरगिस के साथ मिलकर प्लानिंग की, फिर तुमने अपने रकीब को मौत के घाट उतार दिया। वो भड़क उठा।
थानेदार साहिब, इन फर्जी किस्सों में उलझा कर आप मुझे कातिल साबित करने की कोशिश न करें। खुदा गवाह है, मैंने कभी अहमदनगर का रुख नहीं किया। चौधरी को कत्ल करना तो दूर की बात है, इसके भड़कने में अदाकारी का उनसर शामिल नहीं था। इसने ऐसे रद्दमल का मुजाहरा किया था जैसे कोई खरा आदमी गलत बात पर चिरागपा हो जाता है। मैंने कानून के तकाजे निभाते हुए उसको टटोलना और कुरेदना जारी रखा। तुम मुसलसल झूठ पर झूठ बोल रहे हो, मैंने कड़क कर कहा। पिछले 1 साल में तुम कम से कम 10 मरतबा अहमदनगर में देखे गए हो। किसने देखा है मुझे वहाँ? वो गुस्से को जब्त करते बोला। मैंने इसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि कल शाम के वक्त तुम चौधरी फरमान अली की हवेली के आसपास मौजूद नहीं थे। मैंने मंजूर नामी मुलाजिम से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में हबीब को सवालात की चक्की में पीस डाला, लेकिन वो भी अपनी बात पर डटा रहा। खफगी अमेज अंदाज में बोला, थानेदार साहिब, कल शाम तो क्या, मैंने कम से कम 1 साल से अहमदनगर में कदम नहीं रखा। इसकी आवाज़ भर आ गई। जब से नरगस की शादी चौधरी से हुई है, मैंने इधर का रुख करना छोड़ दिया है। ये कोई ढकी चुपी बात नहीं कि नरगस मेरी मंगेतर थी। मैं अहमदनगर के चक्कर काट कर अपनी नज़र में गिरना चाहता हूँ और ना ही नरगस की मुश्किलात खड़ी करना चाहता हूँ। जब मैं चौधरी फरमान जैसे ताकतवर शख्स का मुकाबला नहीं कर सकता तो खामखा रुसवाई का क्या फ़ायदा। वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर पूछने लगा, आपने बताया नहीं कल शाम कि शख्स ने मुझे हवेली के करीब देखा था? ये कोई बताने वाली बात नहीं थी। मुझे मंजूर के झूठ पर सख्त गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा कल इसे थाने बुलाकर रगड़ूंगा। इसने एक तरह से मुझे मिस गाइड करने की कोशिश की थी। मैंने मंजूर का नाम जाहिर किए बगैर हबीब से जिरा जारी रखी। अगर तुम कल शाम अहमदनगर में चौधरी फरमान की हवेली के करीब नहीं थे तो फिर कहाँ थे? मैं अपने घर में था। वो जल्दी से बोला, मुरादपुर में। क्या गुज़श्ता पूरी रात तुमने अपने घर में ही गुजारी है? इसने इस बात में जवाब दिया और कहा, आप मेरे घर वालों से पूछ सकते हैं, बल्कि इस बात की गवाही तो कदीर भी देगा। मैं रात के मामू शौकत के घर इससे गपशप करता रहा था। वो दोनों इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। आप मेरी बात की तस्दीक कर सकते हैं। इसने एक इंतहाई माकूल बात कही थी। वैसे मजमूई तौर पर इसने अभी तक कोई भी फजूल और नामाकूल बात नहीं की थी। वो एक सुलझा हुआ और समझदार शख्स था। मैंने तस्दीक में देर मुनासिब न समझी और थोड़ी देर बाद ये साबित हो गया कि वो कुआ की शाम या रात हबीब मुरादपुर में मौजूद था। इसके बाद हबीब से मज़ीद सवालात और जवाब की गुंजाइश नहीं थी। इसे फारिग करने से पहले मैंने ताकीद कर दी कि वो मुसलसल मुझसे राब्ते में रहे और जब तक इस गेट का ऊँट किसी करवट नहीं बैठ जाता वो थाने में पेशगी इत्तला दिए बगैर अपने इलाके से बाहर न जाए। अगले रोज़ मैंने हवालदार शमशाद को 2 कांस्टेबल्स देकर अहमदनगर रवाना कर दिया ताकि नरगस की खास खादमा सलमा के बारे में मालूमात हासिल की जाए और मंजूर को भी पकड़कर थाने लाया जाए। वो चौधरी कुर्बान का हमायती था। उसका झूठ खुल जाने के बाद मुझे शक होने लगा था। चौधरी कुर्बान ने मंजूर के साथ मिलकर बड़े चौधरी के साथ कोई कार्रवाई की है। हवालदार 1 घंटे बाद वापस आ गया। सलमा के बारे में इसने इत्तला दी कि वो तेज़ बुखार में फुनक रही है और आज भी हवेली नहीं जा सकी थी। मैंने हवालदार से पूछा, और उस सूरमा को लाए अपने साथ? मंजूर बाहर बरामदे में बैठा है, हवालदार ने बताया। वो वहाँ बैठा क्या कर रहा है? मैंने सख्त लहजे में कहा। इसे मेरे कमरे में लेकर आओ, लेकिन कोई छोटा सा ट्रेलर दिखाने के बाद मैं इस पर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। आप फिक्र न करें मलक साहिब, हवालदार खुश होते बोला। मैं इसे ड्राइंग रूम की एक झलक दिखाकर लाता हूँ। 10 मिनट बाद मंजूर मेरे सामने खड़ा थर थर काँप रहा था। हवालदार शमशाद बड़े जारहाना अंदाज में इसके पहलू में मौजूद था। मैंने भरपूर नज़र से मंजूर को देखा और सहलाने वाले अंदाज में कहा, तो मुझ तक पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं उठाना पड़ी? तकलीफ? और वहाँ से आवाज़ में बोला, आपके हवालदार ने मेरा कुछ उम्र निकाल दिया है। मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, हवालदार बहुत जल्लाद किस्म का बंदा है। अगर तुमने मेरे साथ ताउन नहीं किया तो ये तुम्हें जान से मार देगा। वो खौफजदा नज़र से शमशाद को देखने लगा। बाद में मुझसे बोला, थानेदार जी, आप इसे यहाँ से हटा लें। मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ। ये तो यहाँ से नहीं हटेगा भाई, मैंने हतमी लहजे में कहा। मैं सीधा साधा थानेदार हूँ, तुम मुझे चक्कर दे दोगे? तुमसे तो हवालदार ही निपटेगा। मैं आपको कोई चक्कर नहीं दूंगा सरकार, वो रोनी सूरत बनाकर बोला। मैंने हवालदार को जाने का इशारा किया और मंजूर के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ हो गया। इसने बड़ी शराफत से अकरार कर लिया कि वक़ूए की रात और इससे पहले भी इसने हबीब को अहमदनगर में नहीं देखा था। जब मैंने इसे मज़ीद तफ्तीश का डरावा दिया तो इसे उगल दिया कि हबीब को देखने वाली बात इसने चौधरी कुर्बान के हुक्म पर की थी। मैंने इसे कुर्बान का मुआवन गर्दानते हुए फरमान के कत्ल के हवाले से भी कई अहम सवाल किए, लेकिन वो बाकायदा रोने लगा और कहा कि बड़े चौधरी की मौत में इसका कोई हाथ नहीं। छोटा चौधरी अगर इस केस में मुलविस है तो इसे इसका इल्म नहीं। मैंने मज़ीद तफ्तीश की खातिर मंजूर को हवालात में बंद कर दिया। चौधरी कुर्बान की ज़ात लम्हा बलम्हा शकूक की दबीज़ तह में दबती चली जा रही थी। मैंने इसे थाने बुलवाने के लिए अपने बंदे भेजे तो पता चला वो हवेली में मौजूद नहीं था। मैंने इन बंदों की ड्यूटी लगा दी कि जैसे ही वो नज़र में आए इसे इज्जत और एहतराम के साथ थाने लाया जाए। चौधरी कुर्बान के खिलाफ एक गवाह मेरे पास मौजूद था।
منظور گواہی دے سکتا تھا کہ اس نے چودھری کے ایما پر جھوٹ بولا تھا۔ اس گواہی کے بعد قربان کو وضاحت کرنا پڑتی کہ وہ حبیب کو بلا وجہ فرمان علی کے قتل میں کیوں ملوث کر رہا تھا۔ دوپہر کے وقت پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ اور لیبارٹری رپورٹ بھی منسلک تھی۔ ان دونوں رپورٹس کے مطالعے نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ چودھری فرمان علی کی موت رات 2 اور 4 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، اور یہ قابل ذکر بات تھی کہ حالت بے ہوشی میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ ظاہر کرتی تھی کہ اسے ایک زود اثر خواب آور دوا دی گئی تھی اور گہری نیند کے دوران اسے پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ ساری حقیقت 2 اور 2 4 کی مانند عیاں ہو گئی۔ میرا اندازہ 100% درست ثابت ہوا۔ چودھری فرمان کو پہلے نیند آور دوا کے زیر اثر بے بس کیا گیا، پھر اس کی موت کو خودکشی کا رنگ دینے کے لیے اس کی گردن میں پھندا ڈال کر اسے چھت سے لٹکا دیا گیا، گویا یہ ایک سیدھی سادی قتل کی واردات تھی۔